Hey guys, I am back with another video. So this is the part 3 of the code 2 week 3, and let me first set the base of my video. That's what we are going to cover. Before that, I should tell you that I will be working on a project Paytm clone basically that has been already made by the Arket Bhaiya in cohort 2. मैं उसे बनाऊंगा Paytm clone को, and I will be using everything in that, like till now what I have learned from the week 1 to week 3, week 5 till React. Then I will use the all of the point in that single project. So that was one of the important point. And next, what the syllabus we are going to cover in the week 3 part 3 video. So the first is DOM, finding element, HTML element, changing HTML element, adding HTML element, deleting HTML element, query selector, DOM event, onload and unload function, DOM event, listener, सॉरी कुछ मिस्टेक आ रहा है, लिसनर की स्पेलिंग गलत है, बबलिंग एंड कैप्चरिंग फेस. Okay. So this was the syllabus of the part 3 video. I think this is one of the most important topic while making any website, so I should cover it very significantly because this will be required in every project. Like we have to manipulate the DOM element in every project. Now what is the DOM? DOM is a framework basically which is used to interact with the browser when we want to manipulate the element of the HTML element in the browser, when editing, like manipulating, deleting, updating, then we use the DOM in that. Like it is the not dependent on any language, it is the independent of any language. So DOM is a stand for the document object model. It like the behind the scene framework the JavaScript uses to talk the browser. It is independent of any particular programming language. This means whether you are using JavaScript, Python or any other language, the DOM provides you the consistent way to interact with the document. Like ये यूजफुल होता है किसी भी ब्राउजर जो होता है हम लोग का, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं या एक तरीके से वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ब्राउजर से, उसमें डॉम का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, कह सकते हैं. व्हाट इज डॉम ट्री? मतलब कह सकते हैं डॉम ट्री जो हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक तरीके से हायरार्किकल फॉर्म बनाते हैं. जैसे कि पहले बॉडी हो गया, उसके अंदर कोई एलिमेंट हो गया, उसे हायरार्की में हम लोग पैराग्राफ, डिव डालते हैं, तो हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है डॉम ट्री. द डॉम ट्री एसेंशियली फॉर्म ए फैमिली ट्री लाइक स्ट्रक्चर व्हेन where elements are organized in a hierarchy based on their relationship with each other. Document object, a top of the tree in the document object representing the entire web document. Like जैसे कि कोई root element हो गया, उसे हम लोग कहेंगे document object. HTML elements like different HTML like paragraph, div element, span element, bold, italic, heading element, head and body. Within the HTML element there is are two types of main section like head and body. और already तुम जानते हो यार क्या होता है head and body. HTML का फॉर्म होता है, टैग्स होते हैं जिसमें हम लोग डेटा पुट करते हैं. फर्दर नेस्टिंग कह सकते हैं कि एक डिव के अंदर हम लोग दूसरा डिव बना रहे हैं, पैराग्राफ बना रहे हैं या कोई स्पैन बना रहे हैं नेस्टिंग फॉर्म में, तो उसे फर्दर नेस्टिंग कह सकते हैं एक तरीके से. ईच ऑफ दिस मेन सेक्शन में कंटेन फर्दर नेस्टेड एलिमेंट. फॉर इंस्टेंस द हेड could include the element like the meta link, while the body could include the paragraph, images, button and other content, जैसे मैंने बताया वही ये सब. उसके बाद अब हम लोग HTML को कैसे टैकल करते हैं, मतलब डॉम को कैसे टैकल करते हैं, मतलब डॉम को यूज कैसे करते हैं. जैसे कि ये देखो, टू फाइंड द HTML एलिमेंट इन ID, मतलब एक तरीके से जो तुम HTML बनाते हो, HTML पेज बनाते हो, तो उसको हम लोग कैसे अपडेट मैनिपुलेट करते हैं, उसी को हम लोग एक तरीके से डॉम मैनिपुलेशन कह सकते हैं. मतलब किसी चीज़ को अपडेट मैनिपुलेट करना एक तरीके से डॉम का यूज़ करके हम लोग करते हैं. बाय ID, मतलब अगर किसी एलिमेंट की ID दी हुई है और उसे हमें एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं. टू फाइंड द HTML एलिमेंट बाय ID यू कैन यूज द गेट एलिमेंट बाय ID. यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट जो कि एक रूट एलिमेंट है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. यहाँ पे ID पास कर देंगे तो हम लोग का वो एक्सेस हो जाएगा. मतलब जो भी वो डिव सेक्शन होगा या तो पैराग्राफ सेक्शन होगा, स्पैन सेक्शन होगा, वो हम लोग को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई डेटा पुट कर सकते हैं. आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसमें डेटा पुट करना है. मतलब देखो मैं ये बेसिकली होता है डायनामिक एलिमेंट को पुट करने के लिए, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से. जैसे कि हम लोग रिएक्ट जब पढ़ेंगे आगे, तो रिएक्ट में इसमें डॉम का बहुत अच्छा यूज़ होगा. बाय टैग नेम के द्वारा अगर किसी को तुमने टैग दे रखा है, जैसे कि पैराग्राफ हो गया या डिव हो गया, उसको एक्सेस करना तो कैसे करेंगे. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यहाँ पे हम लोग टैग नेम पास कर देंगे अगर किसी को हमने टैग नेम दे रखा होगा तो.
बाय क्लास नेम, अगर किसी को हमने क्लास नेम दे रखा है, प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके यहाँ पे क्लास नेम उसका पास कर देंगे। अभी मैं बता दूं कि एट द एंड ऑफ द आफ्टर रिएक्ट मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा पेटीएम क्लोन करके, उसमें मैं सभी चीज़ों का बेसिकली डॉम का भी यूज़ करूंगा, कैसे डॉम यूज़ करना है उसमें सभी चीज़ों का एक इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म दिखाऊंगा उसमें। अभी मैं कवर कर रहा हूँ थियोरेटिकल फॉर्म में। चल बाय सी एस एस सेलेक्टर, मतलब कोई किसी अगर सी एस एस चेंज करना है किसी डिव सेक्शन का या पैराग्राफ सेक्शन का तो हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट टू क्वेरी सेलेक्टर या क्वेरी सेलेक्टर डॉट ऑल, यहाँ पे तुम पास करते हो मतलब जो भी तुम्हारा सी एस एस सेलेक्टर होगा एक तरीके से, और यहाँ पे भी वही सेम है। यहाँ पे ऑल मतलब कर सकते हैं जितने भी उस नाम के सी एस एस सेलेक्टर आएंगे सब में ये चेंज हो जाएगा। बाय HTML object collection, to find the HTML element using the HTML collection you can use the method get element by name, get element by elements by name, मतलब किसी एक एलिमेंट को फाइंड करना है या एक से ज़्यादा एलिमेंट को फाइंड करना है तो इसका तुम यूज़ कर सकते हो गेट एलिमेंट बाय नेम। अगर एलिमेंट का कोई नेम हुआ तो यहाँ पे एलिमेंट का नेम हम लोग पास कर सकते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड द डिफरेंट वेज टू लोकेट द इंटरेक्ट विद द HTML एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चूज द एप्रोप्रिएट मेथड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। अब मान लो कि मैंने वो चीज़ एक्सेस कर ली इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा, मतलब ऊपर से मैंने एक्सेस कर ली गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब मुझे उसे चेंज करना है, कोई डेटा इसमें पुट करना है तो कैसे करूँगा? ये देखो चेंजिंग HTML एलिमेंट, चेंजिंग HTML एलिमेंट डायनेमिकली इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट। इसका यूज़ हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं रिएक्ट में एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द सेवरल मेथड टू अचीव दिस। हियर आर सम कॉमनली यूज मेथड ऑफ चेंजिंग द HTML एलिमेंट। देखो यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इस ID से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। मान लो कि मैंने कोई डी बनाया है, उसको मैंने ID पास की हुई थी माई एलिमेंट, अब मैंने उसको एक्सेस कर लिया। अब उसमें मुझे कुछ डेटा पुट करना है यहाँ पे, तो डॉट इनर HTML करके मैं वहाँ पे उसमें डेटा डाल सकता हूँ उसके अंदर। उसके बाद टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया कंटेंट, पर्पज सेट द वैल्यू टू द एट्रीब्यूट टू द गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्लास नेम न्यू क्लास। यहाँ पे स्टाइल, अगर स्टाइल चेंज करना है तो कैसे करोगे? डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई एलिमेंट डॉट स्टाइल कलर, किसी डिव का या किसी पैराग्राफ का तुम्हें अगर कलर चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हो तुम। उसके बाद क्लास लिस्ट, एक तरीके से देखो प्रोवाइड मेथड टू ऐड और रिमूव द टॉगल क्लास CSS क्लास और एन एलिमेंट। यहाँ पे देखो तुमने कोई एलिमेंट बनाया जैसे डिव बना लिया, अब उसमें तुमने एक क्लास दे दी, जैसे कि तुमने कोई क्लास दी फर्स्ट, अब मानो कि तुम्हें उसमें एक और क्लास ऐड करनी है तो कैसे करोगे? या तुम्हें एक क्लास रिमूव करनी है जिसमें अगर तुमने एक और क्लास ऐड कर दी तो उसे रिमूव करना तो कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इससे तुम एक और क्लास ऐड कर लोगे और डॉट रिमूव लगा के तुम वहाँ से क्लास हटा सकते हो। और अपेंड चाइल्ड, मान लो कि तुमने कोई डी बनाया सिंपल सा, अब उसमें तुम्हें हायरार्की में एक चाइल्ड ऐड करना है तो कैसे करोगे? इसमें देखो यहाँ पे पहले तो मैं एक चाइल्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, वेर न्यू एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक पैराग्राफ बन जाएगा इस लाइन से, मेरा कोड ऑफ लाइन से। न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट न्यू पैराग्राफ, अब उसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ इस पैराग्राफ में जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, अब उसको मैं अपने पेरेंट डिव में डाल रहा हूँ। मान लो कोई मैंने ऑलरेडी पेरेंट डिव बना रखा है उसमें डाल रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID पेरेंट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू एलिमेंट, तो मैंने उसमें अपना न्यू एलिमेंट डाल दिया है। इट है रिमूव चाइल्ड, अगर तुमने कोई चाइल्ड डाला उसे रिमूव करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे मैं यहाँ वेरीफाई चाइल्ड रिमूव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मैं एलिमेंट का यहाँ पे सॉरी चाइल्ड एलिमेंट जो है उसकी ID यहाँ पे निकालूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई पेरेंट एलिमेंट और रिमूव चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड का यहाँ पे ID पास कर दूंगा सिंपल। यहाँ पेरेंट की ID है और यहाँ पे चाइल्ड की ID है। जब तुम यूज़ करोगे रिएक्ट में आगे जब प्रोजेक्ट काम करोगे तो अभी तुम्हें उतना इसका यूजफुल केस नहीं दिखेगा फिलहाल के लिए। सेट एट्रीब्यूट, अगर तुम्हें कोई एट्रीब्यूट सेट करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे एलिमेंट ID की वाइज तुम निकाल ले, फिर सेट एट्रीब्यूट कर रहे हो उसका सोर्स इमेज ये रहा, या कलर चेंज करना है या तुम कुछ भी कर सकते हो उसमें। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग HTML एलिमेंट, मतलब मान लो कि कोई मैंने HTML बनाया है कोई वेब पेज, उससे मैंने डायनेमिकली मुझे चेंज करना है कोई चीज़, HTML एलिमेंट ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो क्रिएट एलिमेंट आता है मेथड करके, तो उससे तुम लोग कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। मैं यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक डिव यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद अपेंड चाइल्ड एक मेथड होता है कि मान लो कि कोई पेरेंट है उसके चाइल्ड में मुझे एक कोई डिव सेट करना है, एलिमेंट सेट करना है या ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे पहले पेरेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ID के द्वारा, उसके बाद सेकंड में यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर देना हूँ, न्यू एलिमेंट जो यहाँ बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी उसे पुश कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट बिफोर मेथड एक है,
इंसर्ट बिफोर मेथड बेसिकली यूज़ होता है किसी एलिमेंट के पहले कुछ इंसर्ट करने के लिए। तो पहले मुझे एक एग्जिस्टिंग यूज़र जो यहाँ पे है तो मुझे सेलेक्ट करना होगा, बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लो या क्लास कर लो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट डॉट गेट इंसर्ट बिफोर, यहाँ पे नया एलिमेंट है और एग्जिस्टिंग एलिमेंट है। उसके बाद इंसर्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी, जैसे किसी एलिमेंट के HTML के अंदर को मुझे कंटेंट पुश करना है विथ आईडी, सॉरी विथ टैग, तो यहाँ पे मैं ऐसे पुश करता हूँ उस चीज़ को। अब इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब मान लो कोई एलिमेंट दिया हुआ है, डिव दिया हुआ है, उसके एडजेसेंट या बिफोर आफ्टर मुझे पुश करना है तो मैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट का मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए पेरेंट एलिमेंट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट बिफोर हैंड, मतलब उसके पहले ये मुझे टैग और इसके अंदर कंटेंट पुश करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है डिलीट एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मान लो कि कोई एक पेरेंट है, उसका कोई एक डिव है, चाइल्ड है, उसको मुझे रिमूव करना है तो रिमूव चाइल्ड मेथड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं पहले चाइल्ड मेथड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड को पास कर दे रहा हूँ, सिंपल। उसके बाद तुम्हारा है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड बेसिकली यूज होता है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। किसी उससे हम लोग किसी चाइल्ड को रिमूव नहीं कर रहे हैं, किसी पेरेंट को नहीं, सिंगल किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू रिमूव, यहाँ पे आईडी पास हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ डॉट एलिमेंट टू रिमूव, यहाँ पे टू रिमूव पास कर रहा हूँ तो ये चीज़ डिलीट हो जा रही है बेसिकली। उसके बाद अगर कोई चाइल्ड को रिप्लेस करना है मुझे तो मुझे क्या करना है, पहले कि यहाँ पे चाइल्ड बनाना है। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन करके चाइल्ड बना रहा हूँ। उसके बाद पेरेंट एलिमेंट, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट को मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है आईडी के द्वारा। उसके बाद डॉट रिप्लेस, यहाँ पे नया चाइल्ड होगा, यहाँ पे ओल्ड चाइल्ड होगा। उसके बाद इनर HTML तुम्हारा है, अगर किसी HTML के अंदर तुम्हें कंटेंट पुश करना है या तो एम्प्टी उसे बनाना है तो तुम इनर HTML का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही आउटर HTML भी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेरी सेलेक्टर। मान लो कि अब तक हम लोग कोई चीज़ सेलेक्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि बाय टैग सेलेक्ट कर रहे हैं, बाय आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, या हम लोग बाय क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग को बाय आईडी, बाय क्लास, बाय टैग लिखना पड़ रहा है। बट हम लोग को अगर कोई सिंपलर मेथड चाहिए तो वो चीज़ है क्वेरी सेलेक्टर, ऑल इन वन एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्वेरी सेलेक्टर अलाउ द डेवलपर टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML element in document using the CSS like syntax. They provide a powerful and flexible way to target specific element based on their various criteria such as element type, class ID और attribute. Basically हम लोग इसमें ID पास कर देते हैं, क्लास पास कर देते हैं या टैग नेम पास कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे फेच कर लेता है और सबका मेथड सेम ही होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है और लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर डॉट ऑल, और यहाँ पे मैंने पी पास कर दिया, जैसे कि पैराग्राफ टैग है, जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे इसके अंडर आ जाएंगे पैराग्राफ्स में। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास पास कर रहा हूँ, डॉट करके क्लास नेम पास कर रहा हूँ, तो जितने भी इस क्लास के नाम से होंगे यहाँ पे इसमें आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट ऑल से। दो ही इसमें बेसिकली यूज होता है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ तो इस आईडी से जो भी होगा वो फेच कर लेगा यहाँ पे उसे। वैसे एट्रीब्यूट, अगर किसी एट्रीब्यूट को मुझे, जैसे कस्टम एट्रीब्यूट होता है, ये हम लोग खुद बनाते हैं, ये हम लोग को इनबिल्ट नहीं मिलता है, और उसे सेलेक्ट करना है तो क्वेरी सेलेक्टर डॉट ऑल में हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंबाइन सेलेक्टर, लाइक एक से ज़्यादा तुम अगर किसी को सेलेक्ट करना चाहते हो, एक से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसे भी तुम क्वेरी सेलेक्टर डॉट ऑल मेथड से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है डॉम इवेंट। डॉम इवेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी इवेंट, जैसे कि कोई बटन हो गई, अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं किसी बटन को तो क्या होना चाहिए, अगर जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसके बाद जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग डॉम इवेंट कहेंगे। डॉम इवेंट आर द इंटरेक्शन और अकरेंस दैट टेक प्लेस इन द वेब पेज सच एज यूजर क्लिक ए बटन, प्रेसिंग ए की, रिसाइजिंग द ब्राउजर विंडो और द कंटेंट ऑफ द इनपुट फील्ड, चेंजिंग द HTML DOM अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रिस्पॉन्ड द इवेंट। बेसिकली ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग कहते हैं डॉम इवेंट। मतलब कोई चीज़ परफॉर्म करना हो, जैसे बटन पर क्लिक करता हूँ, कोई चीज़ परफॉर्म हो तो हम लोग का डॉम इवेंट के अंदर आता है। अब देखो इवेंट टाइप, कौन कौन से इवेंट टाइप हो सकते हैं। इवेंट टाइप कैन बी ट्रिगर्ड, इवेंट्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस एक्शन लाइक क्लिक, लोड, सबमिट, की अप, की डाउन। जैसे की प्रेस करते हैं तो की डाउन और की अप होता है वो इवेंट। इवेंट टारगेट, जैसे कि वही चीज़ है क्लिक और चेंज करने पे क्या होना चाहिए। इवेंट हैंडलर, अब देखो जैसे कि मैंने कोई चीज़ क्लिक की बटन, उस क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो डिफाइन, अगर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ तो वो तुम्हारा इवेंट हैंडलर के अंदर आता है।
कॉमन इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्लिक इवेंट हो गया, की प्रेस डाउन अप हो गया, सबमिट हो गया, जैसे कि फॉर्म कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी की को प्रेस कर रहा हूँ। और इवेंट चेंज, जैसे कि अगर तुम कोई इनपुट दे रहे हो, जैसे कि जा रहे हो अमेजोन पे कुछ लिख रहे हो कि मुझे आई वॉन्ट बॉल बैट या ट्राईपॉड, कुछ सर्च कर रहे हो, तो ये तुम्हारा चेंज इवेंट पे अंदर आ जाएगा। लोड इवेंट, जैसे कि तुम विंडो लोड कर रहे हो पहली बार, तो वो चीज़ तुम्हारा इसमें आ जाएगा। अकर वेन द रिसोर्सेज एंड एंटायर पेज है फिनिश लोडिंग। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन लोड एंड अन लोड। हालांकि कोई वेबसाइट मैं पहली बार लोड कर रहा हूँ, जबकि मेरी ब्राउज़र लोड कर रहा है किसी वेबसाइट को, तो वो तुम्हारा लोड ऑन लोड में आ जाएगा। अब जब मैं किसी वेबसाइट को छोड़ के जा रहा हूँ या नेविगेट कर रहा हूँ या ब्राउज़र कट कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारा अनलोड फंक्शन के अंदर आ जाएगा। द ऑन लोड और अनलोड इवेंट आर द पार्ट ऑफ द HTML DOM and are used to execute the JavaScript code when the document or page finish loading or unloading. These events are commonly used to perform the action when a user enter or leaves a page. सेम जो मैंने बताया तुम्हारा। देखो मुझे उसे एक्सेस करना है अगर ऑन लोड और अनलोड को, तो कैसे करूँगा? सिंपल HTML टैग है, हेड टैग है, मेटा टैग, टाइटल टैग, स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है विंडो डॉट ऑन लोड। ये एक इनबिल्ट आता है हम लोग को, इज इक्वल टू अगर विंडो ऑन लोड होती है तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा मेरा। इसमें लिख के आएगा अलर्ट पेज, ये चीज़ पेज लोडेड। उसके बाद अनलोड का भी सेम ही है कोड, बस वहाँ पे यहाँ पे विंडो डॉट ऑन लोड हो गया है, ऑन अनलोड। उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म होगा तुम्हारा। अब डॉम इवेंट लिस्टनर, जो मैंने बताया कि कोई तुम डॉम को एक्सेस कर रहे हो, कोई एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, तो उस पर क्लिक कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, किसी की को परफॉर्म करने के द्वारा या किसी बटन पर क्लिक कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, तो वो तुम्हारा आता है इवेंट लिस्टनर के द्वारा। कि इवेंट लिस्टनर जो होते हैं, जैसे मैं कोई बटन क्लिक करूंगा तो क्या इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, वो तुम्हारा आता है इवेंट लिस्टनर के अंदर। DOM event listener provide a more flexible and powerful way to handle the event compared to the traditional event attribute. The add event listener method is used to attach an event listener to an HTML element. It takes the three parameter, the event type, the function to be executed and the event occur. देखो ये दो पैरामीटर तुम्हें समझ में आएगा कि 3 पैरामीटर लेता है। तो पहला होता है इवेंट टाइप, मतलब क्या, जैसे क्लिक ऑन क्लिक हो गया एक इवेंट टाइप। दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, और तीसरा होता है इवेंट अक्कर, मतलब कब परफॉर्म होना चाहिए वो चीज़। तो जो तीसरा है तुम्हारा पैरामीटर, मैं तुम्हें लास्ट स्लाइड में वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो लास्ट स्लाइड उसी की है एक्चुअली। एंड एन ऑप्शनल एंड थर्ड पैरामीटर इंडिकेटिंग द वेदर द इवेंट शुड बी कैप्चर्ड इन ड्यूरिंग द इवेंट प्रोपगेशन फेज। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल इवेंट लिस्टनर का मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है कि एलिमेंट यहाँ पे कोई भी है, जैसे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, यहाँ पे इवेंट जैसे कि क्लिक यहाँ पे लिख के आएगा, और यहाँ पे क्या परफॉर्म फंक्शन लिख के आएगा, और यहाँ पे यूज़ कैप्चर मतलब ट्रू या फॉल्स यहाँ बेसिकली आता है। 2 ही पैरामीटर आते हैं। अगर कुछ नहीं यहाँ पास करते हो तो यहाँ पे फॉल्स आता है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखो एक कोड लिखा हुआ है, क्या था, इवेंट लिस्टनर मतलब बटन क्लिक करने पे यहाँ पे सिंपल मैंने HTML हेड मेटा टाइटल स्टाइल के अंदर बटन में एक्सेस कर रहा हूँ, जिसको मैंने दे रखा है ये कलर पैडिंग फॉन्ट एंड कर्सर। उसके बाद मैंने यहाँ एक बटन बना रखा है और उसको ID दिए माई बटन। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेयर बटन इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैं इस बटन को एक्सेस कर रहा हूँ और एक इवेंट यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ही बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे क्लिक हो तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे बटन डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा जैसे ही उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दूसरा इवेंट लिस्टनर यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है माउस एंटर, जो ये भी एक इवेंट लिस्टनर ही है, सॉरी एक इवेंट है। तो यहाँ बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर माउट, जैसे ही माउस में उस पर ले जाऊँगा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, बटन डॉट बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो जाएगा। उसके बाद एक और इवेंट लिस्टनर मैंने बना रखा है ऑन लीव, जैसे कि माउस में वहाँ से अगर हटाता हूँ तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन बटन डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर कोई मतलब एम्प्टी हो जाएगा, जो पहले था वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मतलब वाइट। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हम लोग का इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग फेस। अब है इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग फेस। तो बेसिकली ये होता क्या, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। तो देखो जब मैं किसी वेबसाइट या किसी ब्राउज़र को एक्सेस करता हूँ, किसी वेबसाइट को बेसिकली कह सकते हैं, तो ये एक वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज बना हुआ है डॉक्यूमेंट, जिसमें HTML है, उसके अंदर बॉडी, उसके अंदर डिव है, उसके अंदर बटन है।
तो जब मैं ट्रेवर्स करता हूँ बेसिकली, तो वो ऐसे ट्रेवर्स करता है, पहले तो विंडो, फिर जाएगा डॉक्यूमेंट में, फिर जाएगा उसके अंदर HTML में, फिर बॉडी में, फिर div में, फिर बटन में जाएगा। अब फिर वो वापस जाएगा यहाँ से निकल के। तो कैसे जाएगा, पहले बटन में, फिर div में, फिर बॉडी में, फिर HTML, फिर डॉक्यूमेंट, फिर विंडो में, फिर बाहर निकल जाएगा वो चीज़। तो ये जो साइकिल यहाँ पे बनी हुई है एक तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन लाइफ साइकिल, जो तुम्हारा इसी के अंदर आता है और बबलिंग और कैप्चरिंग फेज। तो ये हो गया रूट। जब हम लोग रूट से चाइल्ड की तरफ आते हैं तो तुम्हारा कैप्चरिंग फेज में आएगा, और जब चाइल्ड से हम लोग रूट में जाते हैं तो तुम्हारा बबलिंग फेज में आएगा। और जो पैरामीटर ट्रू होता है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। तो ट्रू तुम्हारा होता है ये कैप्चर केस के लिए, और फॉल्स होता है तुम्हारा बबल फेज के लिए। अब मैं इसका थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज में दिखा दे रहा हूँ। Like event capturing. In this phase, the event travel from the root to the DOM tree to the target element. Event handler attached with the use capture set to true are triggered during the phase. मतलब अगर मैं ट्रू सेट कर दे रहा हूँ तो तुम्हारा कैप्चरिंग फेज के अंदर आ जाएगा, ये रहा तुम्हारा कैप्चरिंग फेज के अंदर आ जाएगा। और अगर फॉल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ तो तुम्हारा बबलिंग फेज के अंदर आ जाएगा। तो मैं पहले कोड समझा देता हूँ इसका। कोड क्या है, यहाँ पे HTML टैग है, हेड टैग है, मेटा टाइटल, हेड, फिर बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने 3 div बना रखा है नेस्टेड फॉर्म में, आउटर, मिडल और इनर। अब इन तीनों को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटर, वैसे ही मिडल और वैसे ही इनर टैग को। उसके बाद मैं एक इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे किसी भी div पे तो ये फंक्शन रन होगा, और फंक्शन क्या कर रहा है, console.log लिख के आ रहा है आउटर कैप्चरिंग, जो पहले div को मैं क्लिक कर रहा हूँ। वैसे पैरामीटर में पास किया हूँ ट्रू। तो ट्रू किसके लिए होता है, कैप्चरिंग के लिए। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, ये रहा तुम्हारा कैप्चरिंग फेज, तो कैप्चर को शो करेगा। तो कैप्चर अगर होगा तो वहाँ पे ट्रू पास कर देंगे, और मुझे अगर बबलिंग फेज में कैप्चर करना है, बबलिंग फेज में उसे कैच करना है, तो मैं उसे फॉल्स पास कर दूँगा। तो यहाँ मैंने ट्रू पास किया हुआ है, तो यहाँ मैंने कोड इसका लगा लिया है, कंट्रोल सॉरी चला लेता हूँ। अब इसकी तो मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली। चल भाई चल जा। ओके चल गया चल गया। कंसोल खोल लेता हूँ, तो मैंने कंसोल में ही प्रिंट कराया है। देखो ये तुम्हारा आउटर डिव, ये रहा मिडल, ये रहा इनर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या लिख के आएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा लिख के आएगा आउटर, मिडिल, फिर इनर, क्योंकि ये प्रोपागेट रूट से चाइल्ड एलिमेंट तरफ कर रहा है। अब देखो मैं इनर पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया क्या लिख के आया, आउटर, मिडिल, फिर इनर कैप्चरिंग। और तुम्हारा वही यहाँ था कोड में। अब तुम्हारा आता है कैप्चर बबलिंग फेज। बबलिंग फेज का भी कॉपी कर ले रहा हूँ। कोड सेम है, सब सेम है, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरामीटर में लास्ट में ट्रू नहीं पास किया है, कुछ नहीं पास किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स लेता है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब इसे लाइव करता हूँ। ये रहा। अब इसको मैं कंसोल में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इनर पे, तो पहले ये ट्रैवर्स करेगा रूट, मिडल और इनर। तो फिर अब ये प्रिंट करेगा इनर, मिडल और आउटर। देखना, सॉरी कंसोल ओपन कर लूँ, यहाँ पे देखो लिखा है इनर, मिडल और आउटर। उसके पहले जो कैप्चर फेज वाला मैंने किया था उसमें लिखा था आउटर, मिडल और इनर, और बबलिंग फेज वाला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है इनर, मिडल और आउटर। तो ये होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैप्चरिंग और बबलिंग का। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। उसका अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं दिखाऊंगा तो लास्ट में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो हरप्रीत भैया ने ऑलरेडी बनवा रखा है पेटीएम क्लोन करके, तो इन सब का मैं यूज़ करूँगा उसमें। इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वीक 3 को। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।